Good morning, everyone. Am I audible to you? Am I Good audible? morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. So, in the last lecture, we have discussed shifting theorem of Laplace transformation, and today we will study Laplace transformation of derivatives. Okay. So we have a theorem here. Suppose f of t be any function and which is continuous for all t is greater than 0. Let f of t be continuous for all t is greater than equals to 0 and be of exponential order a. Exponential order a as t tends to infinite, and if its derivative is of class a. We have already discussed these terms exponential order and of class a. First lecture में discuss किया था. So the derivative of f dash of t is of class a. Then in these two conditions, function कैसा होना चाहिए? Function must be continuous and of exponential order and its derivative is of class a. Then Laplace transformation of the derivative exists. Exists when f is greater than a and जो उसकी वैल्यू होती है Laplace transformation of the derivative, it's equals to s L f of t minus value of the function at 0. So this is actually the formula for evaluating the derivative of any function using the Laplace transformation. So you can say that Laplace transformation, this is the derivative of a function. This is the parameter s and given function f of t and the value of the function at 0. In the same way, if we have to find out the derivative, second derivative of the function, and the value will be equal to f double dash of t, second derivative of the function. It's equals to s square Laplace transformation of the function minus s f of 0 minus f dash of 0. So this is the second derivative. In the same way, we can evaluate up to its nth मैम value. आवाज को Am I audible to you? yes ma'am. Voice is clear or not? Clear है ma'am. Voice clear आ रही है? Yes ma'am.
Okay. So this is the Laplace transformation of first derivative, then second derivative. In the same way, we can evaluate the Laplace transformation of nth derivative, and it's equal to Fn of t, Laplace transformation of nth derivative, and it's equals to Sn Lf of t, Sn minus 1 f of 0, Sn minus 2 f dash of 0, up to so on Fn minus 1 of 0. So this is a general formula for evaluating the Laplace transformation of derivatives. With the help of this nth formula, you can evaluate any of derivative of any order. So let's see the problem based on the Laplace transformation derivatives. Suppose we have to prove that of t is 1 by p square. Although you can evaluate it directly, but with the help of derivative formula, we can also prove this. तो पहले तो वैसे जनरली है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर n, वहां से भी हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? यहाँ पर वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज एल एफ डैश ऑफ टी. अभी मैंने आपको बताया है एल एफ डैश ऑफ टी is equals to SL f of t minus f of 0. Okay, so if we take f of t is equals to t, मेरे को ये प्रूव करना है इनको, तो मैंने क्या लिया? फंक्शन ले लिया यहाँ पे t, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव? कितनी होगी? 1 and value at 0 will be, it's 0. Now substitute these values in this formula. F dash of t is 1 minus n, f of t is t, and f of 0 is 0. It's 1 upon s square. कभी कभी s की जगह p भी पैरामीटर यूज करते हैं, so no need to confuse. s and p, these are the parameters, and इसकी जो नोटेशन है वो कभी कभी टू बुक्स वैरी कर जाती है. सो L of 1, what will be the value of Laplace transformation at 1? क्या होती है Laplace 1 upon s, 1 by s. 1 by s is equals to s L of t, and this implies, यही हमें प्रूव करना था, it's 1 by s square. So we can prove using the derivative formula also. Is that clear? Is this clear to you? Amen. Now come to the next problem. Next problem is find out the Laplace transformation of sin 80 minus 80 cos 80. तो ये हमने पहले भी करा था, जस्ट सेपरेटेड, और इसको हम पहले जैसे प्रूव करा था वैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने अभी प्रोडक्ट विद p नहीं पढ़ा है. फिर sin 80 और cos 80 तो इवैल्यूएट कर लोगे सिंपली, बट अगर किसी फंक्शन की t के साथ प्रोडक्ट होती है तो वो अभी हम आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे इवैल्यूएट करते हैं. तो मैं अभी किसी हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रही हूँ. तो डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला
for function first derivative L f dash of t. We all know that it's L f of t minus f of 0. Please don't write present. अभी मत लिखिए आप in the chat box. Now I am taking f of t. मैं क्या consider कर रही हूँ यहाँ पे? ये जो given value है. This is f of t. So it's sin 80 minus 80 cos 80. Now in this formula, derivative is required. So I'm going to evaluate the value of derivative here. It's a cos 80 minus a cos 80. Product rule apply करा है. Plus कितना होगा? a square t. A square t sin 80. Out. And the value of 0 पे कितनी value आएगी? The value sin function is 0 and t is 0. So the value is 0 here. Now substituting these values in this formula. इसमें इसको evaluate करने के बाद it's a square t sin 80. This is my derivative. Function here is sin 80 minus 80 cos 80 and f of 0 is 0. Clear? So it's sin 80 minus 80 cos 80 is equals to 1 by s a square t sin 80. It's a Laplace transformation of a square t sin 80. Now how to evaluate it? A square बाहर आ गया being a constant. अब मुझे evaluate यहाँ पर करना है Laplace transformation of t sin 80. Can you evaluate it? Yes, ma'am. हम ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज की बात होगा ना. अभी हमने आपको बताया ही नहीं है कि इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे. दिस इज इवेल्युएटिंग यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी मैंने अभी आपको नहीं बताया है. ऑल्दो अगर किसी भी फंक्शन का मैं मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ तो फॉर्मूला होता है एल ऑफ टी एफ ऑफ टी होता है इट्स इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ. ठीक है, एल ऑफ टी एफ ऑफ टी. तो ये इस फॉर्म का है. इट मीन्स द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू कितनी होगी? माइनस एफ डैश ऑफ एस डी बाई डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस. क्या होगा? बताओ. इट्स इक्वल्स टू माइनस 1 a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin 80 का हो जाएगा मैम. हो जाएगा. फिर minus 1, the value will be minus 1 d by ds of L of sin 80. So minus by ds of s upon s square plus a square. ये सॉल्यूशन है इसका. ठीक है, तो तुम बहुत सारे फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग. अगर कभी कभी होता है कि पूछ लिया जाता है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है, तो गो फॉर द फॉर्मूला जो हमने सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. नाउ नेक्स्ट मैं जो ले रही हूँ यहाँ पर थ्योरम विच इज मल्टीप्लिकेशन बाय द टी. तो मल्टीप्लिकेशन बाय द टी कैसे करेंगे उसके फॉर्मूलेज में आपको भी बताती हूँ. इज दिस क्लियर? डेरिवेटिव फॉर्मूला इज क्लियर टू यू? yes ma'am.
Now next is multiplication by t. मीन्स किसी भी फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर t के साथ हो रही है तो now we have another theorem in which again the conditions are function is of class A. It's f of t is a function of क्लास ए बिकॉज क्लास एन कब बोल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्लास ए होता है एंड इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी की जो वैल्यू होती है इट्स इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एस ये होती है. In the same way, we have another theorem in which multiplication by t raised to the power n. Multiplication by t raised to the power n. So the formula will be t raised to the power n f of t की जो वैल्यू होती है it's equals to minus 1 raised to the power n dn upon dsn f of s. So with the help of this nth formula you can evaluate अगर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है t क्यूब से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम easily evaluate कर सकते हैं. So this is the general one. Okay, is this clear to you? Yes, ma'am. Now next see the problem based on this multiplication formulas. Yes, ma'am. Find out the Laplace transformation of cos 80 t square cos 80. फॉर्म्स देखकर पता चल जाता है जब हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं तो फंक्शन कैसा होना चाहिए जिसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए तो हम उसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से इवैल्यूएट कर सकते हैं. डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है तो डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करना है. अगर अब फंक्शन में किसी की प्रोडक्ट टी स्क्वायर के साथ हो रही है सो मल्टीप्लीकेशन बाय टी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड वी नो दैट t square. So substitute value of n is 2 here. जो फॉर्मूला होगा it will be minus 1 square second derivative of f of s. Simple. So I'm taking here मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो f of t है मेरे पास वो cos 80 है. Let this is cos 80. Cos 80 की वैल्यू कितनी होती है बताओ. S upon s square plus a square. Square plus A square. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर cos 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट विल बी माइनस 1 स्क्वायर d स्क्वायर बाय ds2 एंड f ऑफ s की वैल्यू कितनी है मेरे पास इट्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सिंपल. इसको दो बार इसका डेरिवेटिव निकाल लो जो भी इवैल्यूएट होकर आएगा दैट विल बी आंसर. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Now come to the next problem. Laplace transformation of t and e raised to the power 80. अब इस वाली प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं. इसको प्रूव करना है मेरे को s minus a raised to the power n plus 1 when s is greater than a. So ये हम शिफ्टिंग थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियल टर्म में है. कर सकते हैं शिफ्टिंग थ्योरम से और इसको हम t raised to the power n से भी कर सकते हैं. Is this clear? Yes, ma'am. अगर मैं इसमें शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मैं इसका
फॉर्मूला लिखूंगी, देन उसको एफ ऑफ एस प्लस ए कर दूंगी, एस माइनस ए कर दूंगी, सिंपल जैसे पहले किया है। और अगर इसमें मेरे को अगर ये प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है तो मैं उससे भी इसको एवेल्युएट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से करती हूँ। तो एक फंक्शन यहाँ पर मेरे पास, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है दिस इज ई रेज़ टू द पावर 80 और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑल नो क्या होता है 1 अपॉन what is s minus a. on s minus a. Now e raised to the power n et इसकी जो वैल्यू होती है it is minus 1 raised to the power n dn upon dsn, take it as f of s 1 upon s minus a, nth derivative of 1 upon s minus a, and this is the general formula जो हमने nth derivative जब आपने पढ़े होंगे तो आपने इसको स्टडी किया होगा। इसकी जो वैल्यू एवेल्युएट होकर आती है वो होती है माइनस 1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a रेज टू द पावर n plus 1. So I'm using this nth formula directly here. And it becomes n factorial by s minus a raised to the power n plus 1. S is greater than a. So it's true. Now you can solve this problem using shifting theorem. So try to solve using shifting theorem also. ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम के लिए मैं t रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देनी है। इज दिस क्लियर? हाँ मैम हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पर? अपॉन इसके करके देख लेना, यही आना चाहिए। Now I'm taking one more problem. Laplace transformation of t e raised to the power 80 sin bt. Laplace transformation of t e raised to the power 80 sin bt. बता सकते हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे इसको कंसीडर करके, उसके बाद जो इवैल्यूएट होकर आएगा उसमें मैं क्या अप्लाई कर दूंगी? शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको सॉल्व, ये पूरे को मैं फंक्शन ले रही हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन बीटी का क्या होगा? b अपॉन b स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, यही होगा। हाँ अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ एल ऑफ टी साइन बी टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 डी बाई डी एस ऑफ बी अपॉन, यही होगी। यस मैम। और इसको वैल्यूएट करके आ जाएगा प्लस 2sb अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। आई एम टेकिंग इट एज एफ ऑफ एस। अब पूरा जो मुझे फंक्शन इवैल्यूएट करना है उसमें मेरी प्रोडक्ट किसके साथ हो रही है? एक्सपोनेंशियल के साथ। और जब किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवैल्यूएट करना होता है और उसकी प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल के साथ होती है, सो वी कैन अप्लाई द शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम सिंपली स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। means Laplace transformation of e raised to the power 80 t sin bt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? f of s minus a। एस माइनस ए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एंड f of s की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड, तो जो इसकी कंप्लीट वैल्यू होगी इट्स s minus a b अपॉन s minus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का
whole square. This is the complete solution. Is this clear? Is this clear to all of Yes, you? ma'am. Or any doubt? Please let me know. Okay. See some more problems based on derivative and multiplication. इसके बाद जो हमारे पास last बचता है इसमें वो division बचता है, division rule. वो हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी मैं इसके कुछ और प्रॉब्लम्स ले रही हूँ. सो इवैल्यूएट t cube cos t, Laplace transformation of t cube cos t. सिर्फ जो मेथड्स यहाँ पर हैं, या तो सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दैट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, देन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसकी फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. आफ्टर दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन. ठीक है, तो फॉर्म देख के पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पर कैसे इवैल्यूएट करना है. यहाँ पे फंक्शन की जो प्रोडक्ट हुई है वो t रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे. एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज इट विल बी -1 रेज टू द पावर 3 d3 by ds3 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t. Cos t. सही होगा? किसी को कोई डाउट? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos t का कितना होगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. इसको S S upon S square plus S. प्लस 1 ही तो होगा. This one. हाँ. यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए 1 होगा. ठीक है ना? हाँ मैम. नाउ इसको 3 टाइम्स आप डेरिवेट कर लो, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसका आंसर होगा. तो सिंपल ऐसे ही एक और आप ट्राई करके देखो. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर e रेज टू द पावर t sin 4t. बिल्कुल पहले वाले की तरह है. सबसे पहले मैंने sin 4t इवैल्यूएट करूंगी, देन t स्क्वायर मल्टीप्लाई के साथ हमें करना है, मींस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है, एंड देन अप्लाई द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. क्लियर? Please write down present in the chat box and also mention your branch. चैट बॉक्स डिसेबल तो करो आप. ब्रांच भी मेंशन कर देना अपनी. मैम चैट मैम चैट डिसेबल. डिसेबल्ड है. मैंने कर दिया अभी. अनडिसेबल है. पार्टिसिपेंट नहीं होगा. एक कोई मिनट. नहीं कर रहा. Now write down. Change the settings. Is it fine? Again the simple problem, बिल्कुल पहले की तरह ही है. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो 4 का और sin 4t का कितना होगा? 4 upon s square plus 4 का स्क्वायर मतलब 16. फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16. ये ठीक है? यही Yes होगा. ma'am. Yes ma'am.
Now Laplace transformation of हाँ t मैम square sin 4t is equals to minus 1 square d square by ds2 4 upon s square plus 60 और जो इसको इवेल्युएट होकर आएगा टेक इट इज f of s। इसके बाद जो मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e की पावर t स्क्वायर sin 4t, इसका कितना हो जाएगा यूजिंग द शिफ्टिंग थ्योरम f of s minus 1। तो रिप्लेस जो भी वॉट एवर यहाँ पर माइनस उसको मुझे s minus 1 से रिप्लेस कर देना है। तो इट्स अगेन द सेम प्रॉब्लम जो हमने पहले करी है उसी की तरह से करनी है। क्लियर? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ एंड वो आप खुद से उसको कर लेना, बहुत सारी बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में भी। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ एंड क्वेश्चन हियर इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin रूट टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एंड हिंट मैं बता रही हूँ यहाँ पे साइन रूट टी का आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्सपेंड इट। मेरे पास जो साइन का एक्सटेंशन होता है, पता है साइन का एक्सटेंशन याद है क्या होता है? t माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, t 5 बाय 5 फैक्टोरियल, t 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको मुझे एक्सपेंड करना है सबसे पहले। एक्सपेंड करने के बाद फॉर्मूला है, so you just try to solve it yourself. Is this clear to you? हाँ मैम Doubt? मैम जो लास्ट टाइम में क्लास में आपने क्वेश्चन दिए थे ना मैम, बोलो। हेलो मैम। हाँ हाँ यस मैं सुन रही हूँ, बोलो। मैम लास्ट टाइम आपने होम में क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें हाँ एक क्वेश्चन मैम समझ नहीं आ रहा उसमें मैम। कौन सा क्वेश्चन है? cos h 80 हाइपरबोल था मैम, और वॉइस इज नॉट क्लियर। हाइपरबोल और cos इसका लास्ट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास ना, आप मुझे लिख कर बता देना, व्हाट्सएप कर देना या तो। ठीक है ठीक है मैसेज ओके मैम मैम। अपने को डाउट क्लास भी ली नहीं अभी तक, फर्स्ट सेकंड यूनिट में। मैं उसको लूंगी, डाउट क्लास बच गई है वो, देखते हैं अभी किस दिन कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, और इस पर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पर और मैंने कौन सा बताया अभी आपको डेरिवेटिव पर, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर लो। ठीक है, तो अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा कंप्लीट हो गया है वो ऑलमोस्ट 50% हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो मेन रहता है दैट इज डिवीजन प्रॉपर्टी एंड द कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ तक का करो आप, उसके बाद करते हैं। उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, बट उससे पहले सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। जस्ट रिवर्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही सारे फॉर्मूलेज हैं, बस उन्हीं का इनवर्स लेना है। That converts into the inverse Laplace transformation. The same property we have to study in the inverse Laplace transformation, shifting property and division property and all. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है तो इनवर्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वो करो साथ साथ में, और जो डाउट होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं किसी एक दिन लेकर, टाइम ऑफ लेकर। ठीक है, एनी अदर प्रॉब्लम? नो मैम।
Subhash, any problem? Thank you, ma'am.